ہمیں حوصلہ، ہمت، جرأت فراہم کیجیے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ملک بھر سے آئے ہوئے علماء، دانشوران، سیاسی قائدین، ارکان پارلیمان، محترم بھائیوں، بہنوں اور نوجوانوں، یہ آپ کی ثابت قدمی کی دلیل ہے کہ 10 بجے سے آپ حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، گویا 5 گھنٹے سے آپ اس حال میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ثابت قدمی کو قائم رکھے، اور جب تک ہم اپنی منزل پر پہنچ نہیں جائیں، اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیں۔ میرے بھائیوں، اب وقت نہیں ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ وقت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ساری ضروری باتیں بحمداللہ آ چکی ہیں۔ اخیر میں چاہتا ہوں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے، بورڈ کے جو ذمہ داران یہاں بیٹھے ہیں ان ذمہ داروں کی طرف سے، اور جو دانشوران یہاں شہنشی پر آپ کی رہنمائی کے لیے آئے ہیں، ان کی طرف سے آپ کے لیے بہت ہی مختصر پیغام میں آپ کو دوں۔ پہلا پیغام یہ ہے، یہاں سے نکلنے کے بعد جیسا کہ ہمارے بعض دوستوں نے کہا، یہ کیا ہنگامہ ہو رہا ہے؟ کھانے کی تقسیم وغیرہ شروع ہوئی ہے کیا؟ جی، بہت سے دوستوں نے یہاں آپ سے کہا، بہت صحیح کہا، اگر اس ملک میں 80% غیر مسلم بھائیوں کو مانا جائے اور 20% مسلم کمیونٹی کو مانا جائے، تو ہر مسلمان اگر 4 اپنے ہندو بھائیوں کو اپنا موقف سمجھائے اور وقف کے بارے میں بتائے، تو پورا ملک آپ کی بات سے واقف ہو سکے گا اور انشاءاللہ آپ کی بات سے اتفاق کر سکے گا۔ سب لوگ یہاں سے یہ ارادہ کر کے اٹھیے، مرد ہوں، عورتیں ہوں، بڑے ہوں، جوان ہوں، کہ ہم میں سے ہر آدمی کم سے کم 4 افراد کو اس قانون کی حقیقت کے بارے میں سمجھائیں گے اور ان کی غلط فہمیوں کو دور کریں گے۔ حکومت یہ غلط فہمی پیدا کر رہی ہے کہ مسلمان کہتا ہے، وقف کا قانون کہتا ہے کہ جہاں وہ ہاتھ ڈال دے وہ وقف ہو جائے۔ آپ ان سے کہیے کہ ہمارے یہاں وقف کی بنیاد یہ ہے کہ انسان جس چیز کا مالک ہو اسی کو وقف کر سکتا ہے، جس چیز کا مالک نہیں ہو اس کا وقف وہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ نرا پروپیگنڈا ہے کہ جہاں پر وقف بورڈ ہاتھ ڈالتا ہے وہ وقف کہلاتی ہے وہ چیز۔ دوسری بات بار بار یہ کہی جا رہی ہے کہ اس قانون کا مقصد وقف کا پروٹیکشن ہے، اس کی حفاظت ہے۔ آپ نے بہت سی باتیں سنی، موٹی موٹی بات یہ ہے کہ لمیٹیشن ایکٹ سے جو استثناء تھا وقف کا، جس کا فائدہ یہ تھا کہ وقف پر جو پرانے ناجائز قبضے تھے ان قبضوں کو بھی ہٹایا جا سکتا تھا، اس قانون میں وقف پر بھی لمیٹیشن ایکٹ عائد کر دیا گیا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر وقف کی کسی زمین پر 50 سال سے بھی ناجائز قبضہ ہے تو آپ اس قبضے کو ہٹا نہیں سکیں گے۔
12 साल से अगर किसी का नाजायज कब्जा है तो आप उसको हटा नहीं सकेंगे, उस नाजायज कब्जे को उसका जायज कब्जा बना दिया जाएगा। आप सोचिए कि ये कितना बड़ा नुकसान है। आपने अभी सुना जो मस्जिदें हैं, जो मकाबिर हैं, जो आसार कदीमा में आते हैं वो वक्फ हैं। अब इसका नतीजा यह होगा कि आसार कदीमा की तमाम मस्जिदें, हमारे मुल्क की बड़ी बड़ी मस्जिदें जिनको देखने के लिए लोग दुनिया के गोशे गोशे से आते हैं, ये सब वक्फ के दायरे से निकल जाएंगी। और अगर खुदा न खास्ता कभी कोई पागल हुकूमत आई जैसी हुकूमत इस वक्त है और उसने आप पर पाबंदी लगा दी कि यह मस्जिद वक्फ के दायरे में नहीं आती है, आप इसमें नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप नमाज नहीं पढ़ सकेंगे। तो ये कहना कि ये कानून वक्फ की हिफाजत के लिए है, बिल्कुल धोखा और गलत है। तीसरी बात ये कही जा रही है कि इसका ताल्लुक इंतज़ाम से है, मजहब से नहीं है। ये भी बिल्कुल झूठ है। इसी कानून में ये बात कही गई कि जब तक 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुसलमान न हो, अमली मुसलमान न हो, उस वक्त तक उसका वक्फ करना मोतबर नहीं होगा। अगर वक्फ का ताल्लुक मजहब से नहीं होता तो ये अमली मुसलमान होने की शर्त आपने क्यों लगाई? इसी कानून में आपने ये बात बताई कि अगर कोई गैर मुस्लिम काज के लिए, इस्लामी मकासद के लिए वक्फ करे तो वो वक्फ मोतबर नहीं होगा। अगर इस कानून का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होता तो वक्फ करने वाले के लिए मुसलमान होने की शर्त लगाना, जो बिल्कुल बेजा शर्त है, और इंसान की जो ज़ाती आज़ादी है, शख्सी आज़ादी है, उस पर हमला करना है, ये आपने इस कानून में क्यों रखा? कहा जाता है कि इस वक्त कानून 2025 का मकसद गरीबों की मदद करना है। जैसा कि हमारे बाज़ दोस्तों ने कहा, उनसे पूछिए कि इस कानून की कोई दफ़ा ऐसी बताइए जो गरीबों की मदद को बताती हो। हम आपको बताते हैं कि वक्फ कैसे गरीबों की मदद के लिए। मस्जिदें वक्फ हैं, इसमें एक दौलतमंद शख्स को नमाज पढ़ने का जितना हक है, एक गरीब को भी नमाज पढ़ने का उतना ही हक है। ईदगाह वक्फ है, जैसे एक मालदार शख्स इसमें ईद की नमाज अदा करेगा, एक गरीब भी अदा करेगा। कब्रिस्तान वक्फ है, जैसे एक दौलतमंद शख्स को उसमें दफन किया जाएगा, एक गरीब और मुफलिस शख्स की भी उसमें तदफीन होगी। तो अगर आप यतीम खाने वक्फ हैं, मदरसे वक्फ हैं, इसमें गरीबों को तरजीही तौर पर तालीम दी जाती है, तरबियत का और ज़िंदगी गुजारने का मौका दिया जाता है। और आपको मालूम होना चाहिए, शरीयत का एक उसूल है, जितने भी वक्फ हैं, वक्फ किसी भी मकसद के लिए किए जाएं, उनका आखिरी मसरफ फ़ुक़रा और गरीब है। आपने एक वक्फ किया अपनी औलाद पर, जब तक आपकी औलाद का सिलसिला बाकी है वो उससे फ़ायदा उठाएगी। अगर आपकी औलाद यहाँ से चली गई, ख़ानदान बिल्कुल चला गया, ख़ानदान ख़त्म हो गया, अब वो वक्फ खर्च होगा समाज के गरीब लोगों पर। तो ये कानून गरीबों की मदद नहीं करता है, बल्कि शरीयत में वक्फ के जो अहकाम हैं वो गरीबों की मदद करते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि ये 2-4 बातें जो मैंने कही, जिसको बार बार मीडिया वाले दोहरा रहे हैं, आप गैर मुस्लिम भाइयों को खुद अच्छी तरह समझकर इसको समझाने की कोशिश कीजिए। दूसरा पैगाम आज के इजलास से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये है, हमें एहतजाज करना है, यह हमारा जमहूरी हक है, लेकिन अमन के साथ, कानून के दायरे में रहते हुए। हरगिज़ अमन को मुतासर होने नहीं दीजिए। आपके सफ़ों में ऐसे लोग शामिल हो सकते हैं
जिन का मकसद आपके एहतजाज को नाकाम करना और बदनाम करना है। और अल्लाह का शुक्र है कि पूरे मुल्क में मुर्शिदाबाद के एक वाक़े के सिवा इस एहतजाज में कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। इस वक्त केरला से लेकर कश्मीर तक और महाराष्ट्र से लेकर आसाम तक पूरे मुल्क में इस काले कानून के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, लेकिन कहीं कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। तो हर हाल में हमको अमन को बरकरार रखना है। तीसरा पैगाम यह है कि अपने इत्तेहाद को कायम रखिए। अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त पहले भी था और इस वक्त भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्लेटफार्म पर शुरू से पूरी उम्मत मुत्तहिद है। आप इस डाइस को देखिए, शहनशी को देखिए, हर मकतबे फ़िक्र, हर तंजीम, हर जमात, यहाँ तक के मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग ये भी हमारे डाइस पर मौजूद हैं। हर कीमत पर इस इत्तेहाद को कायम रखिए। हुकूमत चाहती है कि आपके इत्तेहाद को तोड़ दे। अब ये बोहरों के बारे में एक शोशा छोड़ दिया गवर्नमेंट ने, बिल्कुल झूठी बात है। बोहरे नुमाइंदे हम लोगों से खुद आकर मिले हैं और उन्होंने साफ कहा कि हम इस कानून की तायीद में नहीं हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि चूंकि हमारे मसलक में वक्फ कायम करने का और वक्फ के खर्च करने का अलग रूल होता है, इसलिए हमारा वक्फ अलग कर दिया जाए, हमको इससे बाहर निकाल दिया जाए। और हम लोगों ने कहा कि हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। इसी तरह मुसलमानों में मालदार और पसमानदा लोगों का कोई इख्तलाफ नहीं है। मुसलमानों में ऊंच नीच का तस्वुर ही नहीं है। हमारे हिंदू भाइयों के मंदिरों में आप बताइए कोई दलित वहाँ का पंडित और पुजारी बन सकता है? लेकिन आप दिन रात अपनी मस्जिद में देखते हैं कि एक मुसलमान नौजवान नहायत ही निचले समाज से उठता है, वो इमाम होता है, आप उसके मुक्तदी होते हैं। जब आप नमाज पढ़ते हैं तो जहाँ उसका पाँव होता है वहाँ आपका सर होता है। ये इस मजहब की खूबसूरती है और इस मजहब की खूबसूरती से इस मुल्क में फ़ायदा उठाया गया है। यहाँ जो तहरीकें उठी हैं मसावात की, वो आपकी देन है, वो आपने इन तक वो पैगाम पहुँचाया है। तो मेरे भाइयों, हर कीमत पर हमें अपने इत्तेहाद को रखना है। लोग ऐसे मसाइल को छेड़ने की कोशिश करेंगे कि आप आपस के इख्तलाफ में उलझ जाएं। हरगिज़ इसमें इस उलझाव से अपने आप को बचा कर रखना है। हम उलमा से ख़ास तौर पर गुजारिश करते हैं, हमारे दरमियान छोटे मोटे फ़ुरूई इख्तलाफ भी हो सकते हैं, एतक़ादी इख्तलाफ भी हो सकते हैं, हम उनको अपनी दरसगाहों तक महदूद रखें, लेकिन अवाम में हम इन मसाइल को न लाएं और एक सीसा पिघलाई हुई दीवार की तरह इस जुल्म के मुकाबले में और जालिमों के मुकाबले में खड़े रहें। और चौथा पैगाम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आप हजरात के लिए ये है कि कभी भी अपना हौसला नहीं हारें, हिम्मत और हौसले के साथ हम रहें। इस्लाम की नज़र में अक़लियत और अक्सरियत कोई चीज़ नहीं है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में तौहीद की आवाज़ बुलंद की तो ऐसे मुसलमान, ऐसी अक़लियत थी कि जिनका आगाज़ एक फ़र्द से हुआ था। लेकिन हमारा हौसला हमेशा कायम रहना चाहिए और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो हिदायत दे उसके मुताबिक हमारी दरख्वास्त है कि आप सब उस पर अमल करें। लोग बहकाएंगे, ये बुज़दिल हैं, ये तो सिर्फ चिकनी चिकनी बातें करते हैं, इत्तेहाद की बात करते हैं। आप ऐसी बातों से गुमराह न होइए। आप देख रहे हैं ये जो आपके कायदीन हैं आज शेरवानी और इबा पहन कर आए हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो ये कफन पहन कर भी आएंगे। आप अपने आप को इस बात के लिए तैयार रखिए कि आज आपके हाथों में घड़ी है
اور ضرورت پڑی تو ہم اپنے ہاتھوں کے لیے ہتھکڑیوں کو بھی قبول کریں گے. حوصلے کے ساتھ، دانشمندی کے ساتھ، شجاعت کے جذبے کے ساتھ، اپنے اتحاد کو باقی رکھتے ہوئے اور اپنی آواز کو ایک دوسرے کی آواز سے ملاتے ہوئے ہم اگر آگے بڑھیں گے تبھی ہم اس لڑائی کو جیت سکیں گے اور تبھی ہمیں اس میں کامیابی حاصل ہوگی. آپ یہ مت سمجھیے کہ اس اجلاس پر یہ بورڈ کا یہ پروگرام ختم ہو گیا. یہ لمبی لڑائی ہے، اس کو دور تک لڑنا ہے اور دیر تک لڑنا ہے اور مل جل کر لڑنا ہے. جب مسلم پرسنل لا بورڈ آپ کو جو پیغام دے اس پیغام پر آپ لبیک کہیے. آگے بڑھنے کو کہا جائے تو آگے بڑھیے اور پیچھے ہٹنے کو کہا جائے تو ڈسپلن کے تحت اور انتظام کے تحت پیچھے ہٹیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، ہماری وحدت کو برقرار رکھے اور ہماری ہم سب کی مہم کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله